Okay, children. We start with the next topic, that is friend function. It's a very interesting name given to the function, and the meaning is also the same as what and how we behave with our friend. So, hence, we are given the name as friend function. Now, seeing the definition of the function, it says that it is a function that can access the non public members of a class. अभी तक जो हमने करा है, we have studied that a non-member function cannot have an access to the private data of the class. और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं कि friend function can have access to the non-member of a class even though the function will not be considered as a member of that class. So it is that function which is a special privileged function than our normal data member. फ्रेंड फंक्शन को हम डेटा मेंबर भी नहीं बोलेंगे बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू अ क्लास. ठीक है, तो हियर वी टेक एन एग्जांपल वेयर लेट्स से आपके घर में one of your friend has come for let's say 2-3 months for some extra classes and coaching, so your house is nearby to his coaching center, so he's come and staying there. What will you will not start calling him the member of the family, isn't it? आप जाके राशन कार्ड में उसका नाम लिखवा के तो नहीं आओगे ना, उसका आधार कार्ड में आपका घर का एड्रेस तो नहीं होगा. दैट मीन्स ही इज नॉट द मेंबर ऑफ योर house of your family, but yes, he stays in the house and hence he has a certain kind of access to the things in the house. ठीक है, इतना हम लोग अभी समझ लेते हैं. नेक्स्ट वी सी हाउ द एक्सेस कैन बी टेकन बाय अ फ्रेंड फंक्शन as compared to you. When you are taking something from your home, you are the data member and आपका जो friend आया हुआ है that is the member function नहीं है, वो friend function है. तो उसका access में और आपके access में क्या difference होगा, this is what we learn here. And question arises here that why do we require such a function which needs to access the non-public members of a class. जब हमने उनको non-public बना ही दिया है, we want them not to be accessed from outside the class, तो जरूरत पड़ ही क्यों रही है. So we'll see that. ठीक है, अभी on the screen what we can see is this is how children on the left hand side, left hand bottom side, if you see class my class प्राइवेट इंट ए इज अ डेटा मेंबर और पब्लिक में आपने फ्रेंड वॉइड फन लिखा हुआ है विच मीन्स फन इज द नेम ऑफ द फंक्शन बट उसके आगे कीवर्ड फ्रेंड लिखा है. दैट मीन्स इट इज नॉट द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, इंस्टेड इट इज द फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास. ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इट इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास स्कोप. स्कोप क्या है, प्राइवेट और पब्लिक, उससे वो बाहर है ना, वो प्राइवेट है ना वो पब्लिक है क्योंकि वो क्लास का मेंबर ही कंसिडर नहीं होता है. ठीक है, बट इट हैज द राइट टू एक्सेस ऑल द प्राइवेट एंड द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास. प्रोटेक्टेड मेंबर्स कौन से होते हैं, दिस वील स्टडी व्हेन वी डू द इनहेरिटेंस, बट अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं दैट द मेंबर्स विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द क्लास मेंबर्स इटसेल्फ, उनको वो भी एक्सेस कर सकता है. इवन दो द प्रोटोटाइप्स फॉर द फ्रेंड फंक्शन अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे है फ्रेंड वॉइड फन, ये प्रोटोटाइप हमने क्लास के अंदर लिखा है बट इसका जो मेंबर इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. दिस इज व्हाट वी वांट टू से. ठीक है, now look at the left hand side of the screen. Here
we are taking an example that why do we would require a friend function. दो हमने क्लास बनाई है, एक स्टूडेंट है और एक मार्क्स है. स्टूडेंट में उसके हमने डेटा मेंबर्स रखे हैं नंबर, रोल नंबर और नेम, और मार्क्स में डेटा मेंबर्स रखे हैं सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2. नाउ इफ यू सी, तो ये सारा डेटा एक स्टूडेंट का है, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, इजंट इट. इसको दो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया हमने. So what I want here is there should be a common function which can read the data members of my student class also and can read the data members of my marks class also. That means एक ऐसा function जो roll number और name भी access कर सके and subject 1 और subject 2 को भी access कर सके. So this function I will try to make the functions that are written here, I will try to make them as friend function so that ये लोग एक दूसरे की क्लासेस के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकें. जस्ट रिमेंबर द पॉइंट जो हमने लिया है कि आपका फ्रेंड आया हुआ है, ठीक है, तो वो अपने घर का तो एक्सेस कर ही सकता है, लेकिन आपके घर में रह रहा है तो ही कैन एक्सेस योर हाउस थिंग्स ऑल्सो टू सम एक्सटेंट. ठीक है, कीप दैट इन माइंड, टू सम एक्सटेंट. आपके मम्मी पापा के रूम में जाके उनका लॉकर नहीं वो खोल सकता है. ही कैन नॉट टेक द मोबाइल ऑफ योर फादर विदाउट आस्किंग हिम. ठीक है, यू कैन टेक इट, ही कैन नॉट डू इट. सो फ्रेंड फंक्शन के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. ओके, तो व्हाट इज अ फ्रेंड हियर? The friend declarations introduce extra coupling between classes. ठीक है, क्लासेस में हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. वंस एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड, फंक्शन डिक्लेयर होता है, ऑब्जेक्ट नहीं, रॉन्ग, इट्स रिटन हियर. वंस एन function is declared as friend, it has access to all the non-public members of the class as if they were public. ये याद रखना है, वो प्राइवेट है लेकिन हमारे को एक्सेस ऐसे मिल रहा है जैसे कि वो पब्लिकली हम उनको एक्सेस कर सकते हैं. Another point written here is it is unidirectional children. अगर मैंने B को डेजिग्नेट किया है फ्रेंड ऑफ A, तो B can access A's non-public member. Vice versa is not going to be true. A cannot access B's non-public members. ठीक है, this is an important point to understand. And a friend function is outside the class scope. उसको लिखते हैं हम पब्लिक में है, पर उसका स्कोप जो है वो ना तो प्राइवेट है ना ही पब्लिक है. ठीक है. Now how to declare this friend function? We have already seen in the first slide कि उसका प्रोटोटाइप हम लोग क्लास के अंदर ही लिखते हैं. ठीक है, preceding it with the keyword friend. This is the syntax: friend, return type and function name. So you write on friend, void, name of the function and arguments if there are any. चलो, आर्ग्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो फ्रेंड का आर्ग्यूमेंट होंगे ना फ्रेंड फंक्शन के, दे कैन ओनली बी एन ऑब्जेक्ट. वो नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं होते हैं. ठीक है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट सेक्शन इन द क्लास, बिकॉज वो स्कोप में ही नहीं आता है, तो उसको आप कहीं भी डिक्लेयर करो. अगर पीछे फ्रेंड लिखा हुआ है तो it will not matter whether it is in private or protected or a public area of the class. It may not have any arguments. और जो उसके arguments हैं वो object होते हैं which will be passed as the arguments as the pointer. ये हम example में देखेंगे, but always remember that object ही argument हो सकते हैं. All right. So again, look here, class, we've written class name, private, the data members, variable 2, public में आपने friend, class name लिखा है, यहाँ पे आप return type और भी कुछ दे सकते हैं. ठीक है. Now the question that comes to you is this: what is a friend function
What are the special characteristics of a friend function? First, it is not in the scope of the class to which it has been declared as friend. ना तो वो पब्लिक ना वो प्राइवेट स्कोप में आते हैं, ठीक है. इट कैनॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. अब ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास के थ्रू हम कौन से फंक्शंस बुलाते हैं? रिमेंबर हमने क्या किया है? क्लास सम था, उसका ऑब्जेक्ट बनाया s डॉट गेट डेटा, बिकॉज गेट डेटा इज द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं. बट हियर क्योंकि वो डेटा मेंबर है ही नहीं है, आई कैन नॉट कॉल इट विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसको कैसे कॉल करेंगे हम? नॉर्मल फंक्शन की तरह. इट विल बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. Now I said that it can use the private members of the class. That means the data members. ठीक है. पर डेटा मेंबर्स को यूज करने के लिए भी उसको डॉट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी, विच अदरवाइज अ मेंबर फंक्शन को नहीं होती है. आप गेट डेटा को याद करो. सी आउट एंटर द नंबर सी इन ए इज अ डेटा मेंबर हमारा. ठीक है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, बट यहां हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं. विल सी इन दी एग्जाम्पल आगे. It can be public or private. It has objects as argument. And the most common use of friend function is overloading. हम overloading क्या होती है आगे देखेंगे हम. ठीक है. These are the points that should be learned by you. So these are the important points, children, for friend function. Now let us see the examples. अभी ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल एग्जाम्पल है, एक ही क्लास में हमने यूज किया हुआ है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द फ्रेंड फंक्शन. उसको बाद में हम लोग दो क्लासेस में भी यूज करके देखेंगे. नेम ऑफ द क्लासेस सैंपल, इंट ए इंट बी, डेटा मेंबर्स हैं ए और बी. डेटा मेंबर्स हैं, दैट मींस इनका जो मेंबर फंक्शन है उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. वॉइड सेट वैल, सेट वैल क्या है? डेटा मेंबर. ठीक है. a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 40, हमने डायरेक्टली एक्सेस किया है. ठीक है. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ फ्रेंड फंक्शन. फ्रेंड फ्लोट मीन, फंक्शन का नाम क्या है? मीन. रिटर्न टाइप क्या है? फ्लोट. एंड इट इज अ फ्रेंड टाइप ऑफ अ फंक्शन. सैंपल एस, उसकी आर्ग्यूमेंट देखो क्या है? एस. और एस क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि सैंपल पीछे लिखा हुआ है, तो सैंपल एस. ठीक है, हमारी क्लास क्लोज हो गई. मैंने इसका सिर्फ प्रोटोटाइप लिखा है, इसकी डेफिनेशन लिखा ही नहीं है. डेफिनेशन इज आउटसाइड द क्लास. and when you define any member function outside the class, it has to be with the scope resolution operator. और इसको मैंने scope resolution operator के साथ लिखा ही नहीं है. why? because it is not a member of the class. remember, इसको हम normal functions की तरह डिफाइन कर रहे हैं. float mean, ये इसकी डेफिनेशन है. सैंपल s क्या रिटर्न करो हमें? a plus b divided by 2. Now the point here that you have to see is that A और B को एक्सेस करने के लिए मुझे डॉट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट हुई है विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ यहाँ पे आपका फ्रेंड आपको याद आना चाहिए कि जब आपका फ्रेंड आपके घर में रह रहा है, he can not access anything directly. वो आपके थ्रू ही चीजों को एक्सेस करेगा. ही विल टेल यू मुझे तेरे पापा का फोन चाहिए, तो आप जाओगे अपने पापा का फोन लेकर आओगे एंड ही विल टाइप द नंबर. ही विल से आई टुडे फील लाइक ईटिंग समथिंग लाइक दिस. आप अपनी मदर को बोलोगे आज ये बनाओ, उसका दिल कर रहा है ये खाने के लिए.
So the direct access of your friend living in your home is not there. Similarly, here A or B, they are the data members and this main is a friend. तो इसका भी एक्सेस इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू है. सी डेटा मेंबर्स का ऑब्जेक्ट क्लास, डेटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं बिकॉज वो फ्रेंड है. अदरवाइज हम एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं डेटा मेंबर्स को जो प्राइवेट होते हैं. सो हियर वी justify our line which says non public members of the class. ठीक है, ये डेफिनेशन होगी इसकी. अब इसको कॉल किया है, देखो हमने मेन में कॉल भी हमने इसको क्लास का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं लिया है. आई रोट सी आउट मीन, आई एम कॉलिंग इट, और मीन में मैंने पास क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट है. ऑब्जेक्ट पहले बनाया है मेन में, उस ऑब्जेक्ट ने इनको एक्सेस किया है, वैल्यू रिटर्न की है, और वैल्यू क्या है, a प्लस बी का मीन, तो वो फाइंड करके उसको रिटर्न किया है. दिस इज हाउ द फ्रेंड फंक्शन एग्जीक्यूट्स. ठीक है, यू विल गेट अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन, व्हाट आर इट कैरेक्टरिस्टिक्स. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन लिखोगे. A function which can access the non-public members of a class. It is declared with the help of a friend keyword. It is not in the scope of the class. ये सारी characteristics लिखोगे और साथ में this example you can add. This is how the friend function is used. Okay? तो ये तो एक ही क्लास में यूज हो गया. ठीक है, another example where I've given you same in one class only. एक ही क्लास में अगर हम int x int y हमारा फंक्शन है, डेटा मेंबर है, सम हमारा फ्रेंड फंक्शन है, सम से हम ए और बी को एक्सेस कर रहे हैं, m डॉट ए एंड m डॉट बी, और मेन में हमने वैल्यूज सेंड करी है. 10 20, दिस 10 विल गो इन x, दिस 10 विल गो इन y, और x और y में जाके x से a में जाएगा, y से b में जाएगा, और यहाँ पे हम a और b को एक्सेस करके उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो इंट आया हमारा. ठीक है, same example in one class. So this is the declaration of the function, friend function, and this is the calling of the friend function. Calling में भी हम एक normal function की तरह call कर रहे हैं. I'm not using any object to call, but I'm passing an object here definitely because argument उसकी object है. Now this example, children, is a very important example जहाँ पे एक्चुअली फ्रेंड का मतलब समझ में आता है कि फ्रेंड की रिक्वायरमेंट क्यों है. So here I have declared two classes, class A and class B. Class A के आगे हमें लिखा हुआ है forward declaration. We'll see why. Int B, B को belong करता है, और एक friend function है जहाँ पे मुझे A और B दो variables चाहिए, दो objects बना रही हूँ मैं, जो एक A को belong करता है और एक B को belong करता है. तो if this statement will be an error if हमने क्लास ए को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, हमने डिक्लेयर किया है, सिर्फ हमारी क्लास ए एग्जिस्ट करती है, तो अगर करती है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे ओनली फॉर दिस पर्पस, तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया है. ठीक है, तो बेसिकली हम दो क्लासेस की बात कर रहे हैं. एक बी क्लास है जिसमें बी डेटा मेंबर है, और एक क्लास ए है जिसमें ए डेटा मेंबर है. ओके, नाउ ए ने बी को भी एक्सेस करना है और बी ने ए को एक्सेस करना है. फॉर दैट आई रिक्वायर वन फ्रेंड फंक्शन विच इज कॉमन टू बोथ द क्लासेस. बेसिकली हम किया है. ठीक है, तो अगर आप देखो क्लास बी और क्लास ए दोनों बना दी, फ्रेंड फंक्शन बना दिए, और एक सम बना दिया हमने, सॉरी सम जो फ्रेंड था उसको हमने डिफाइन किया है. नाउ सी, with the help of the object of the A class, I can access the A's data member,
with the help of the object of the B class I can access the data member of B class. ठीक है, तो यहाँ पे हम friend function, because of the friend function I can access the data members of the two classes. This is actually where the friend function will be used, जिसमें forward declaration की requirement होती है. This is another example. ठीक है, again we are talking about two classes. A class का data member B है, हम वैल्यू ले रहे हैं B की X के थ्रू और शो कर रहे हैं वैल्यू, और एक फंक्शन बना रहे हैं ऐड. दूसरी क्लास का B एक वैल्यू ले रहे हैं A, शो कर रहे हैं, और एक उसका भी फ्रेंड, उसमें भी फ्रेंड फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम दोनों के फ्रेंड्स, दोनों के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे और दोनों के डेटा मेंबर्स के थ्रू हम ऐड करेंगे, वेरिएबल्स को एक्सेस करके ऐड करेंगे. ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन.